do the third case of parallel plate capacitor. Third case basically in which, let us suppose we are having a capacitor of capacitor plate case 3. We are having a capacitor not visible. Let's now this is visible. Capacitor plate, so having conducting slab in between. Capacitor plate having conducting slab in between plate. In between. So this is the case of today study. Let's write again because we have not seen where capacitor plate having conductor slab in between. So this is the today's talk. So for this, first we consider again same thing, parallel plate capacitor. You have two plates here. One has charge Q, another plate is here which also has a charge Q. Okay, if we talk about the charge density is sigma, charge per unit area. Here also same, sigma, charge per unit area. Here is a minus Q. So the electric field is it here, and E naught, all of you know. And capacitance in this case, E naught, is basically given by Q upon V naught, and previously, if I solve this, so you will get this is ऐसे भी लिख सकते हो या epsilon naught A upon D capacitance in such condition when there is nothing here. Nothing here means there is only air. Now, if we put a conductor in between the plate, then what happens? This is today we are going to determine. तब क्या होगा वो हमने determine कर लिया. So let us suppose if we put a conducting material of slab of thickness T, not just equal to the distance between the plate D. This is the distance between the plate D. We are only going to put a conducting material slab T, slab which has the T wide, the thickness of the conducting slab, thickness
of the conducting slave in conducting slab is equal to T, है ना, which is basically T is less than D, spacing between the plate. D is basically what? Spacing between the plate. Spacing between the plate. So T is basically less than D. Okay. So whenever you are going to put the conducting plate, so as I told you in earlier classes, conductor has electrons and proton. Every material has electron and proton inside. What conductor has free charge more as compared to the other material. So here the free charge available, totally free charge. So electron is feeling this electric field, and this electric field exert a force on electron here. Suppose this is the electron here. So electron feeling the force due to this electric field. So F is equal to QE. All of you know F is equal to QE. The force. So if you are going to put here electron, force on electron is just equal to E is the charge on electron, E minus E naught. Okay, E naught. So just opposite. This electron is moving in this direction due to this force. Suppose let's proton here, electron here, and proton here. Proton feeling again a force F is equal to QE. So any charge feel a force, how much? F is equal to E. QE. Q is the charge. तो प्रोटॉन पर अगर आपने लगाना है फोर्स तो कितना लगेगा? प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का ई होता है और ई नॉट, चार्ज सेम रहता है ई नॉट. तो प्रोटॉन किधर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? प्रोटॉन इधर मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा. इन अदर वर्ड्स, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द प्रोटॉन. ऐसे भी सोच सकते हो या ऐसे सोच सकते हो, कैसे भी सोचो. तो आप ऐसे दिखा सकते हो. तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें सारे फ्री हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे. जितना भी आप अप्लाई करोगे ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे. तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और सारे प्रोटॉन इधर आ जाएंगे. ऑल प्रोटॉन्स आर रीचेड. तो ऑल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रीचेड टू द सरफेस ऑफ द conducting slab. So here nothing new. So electric field is now generated in this direction, internal electric field EI. But now in this case, this electric field just equal to this electric field. So here is no electric field. Internal electric field in this direction. So resultant electric field E is nothing here. E is equal to 0. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि E नॉट इक्वल टू EI है. तो दोनों इक्वल होंगे. व्हाट? अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन. बस जस्ट अपोजिट रहेंगे, एक दूसरे की डायरेक्शन के अपोजिट रहेंगे. एक इधर लगाया हुआ तो एक इधर लगा हुआ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. तो अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जब कंडक्टर पुट किया हुआ है. बट देयर इज अ रीजन हियर, सम गैप इज हियर. So here is some electric field already available, है ना. So this is the region. How much region is left? How much region is free? So free region, तो आप बोल सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन बिटवीन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E in between the spacing in between the spacing, और आप बोल सकते हो in between the कैपेसिटर प्लेट. कैपेसिटर प्लेट इज इक्वल टू कितना होगा?
E इज जस्ट नथिंग बट E इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली V टाइम्स डी, V टाइम्स डी। ओके, आप बोल सकते हो V टाइम्स D आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक, सॉरी V अपॉन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा V अपॉन डी। तो दिस इज द V अपॉन डी। डी स्पेसिंग कितना बचा हुआ है ये आपका, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो रिमेनिंग स्पेसिंग कितनी बची हुई है आपकी, इतनी बची हुई है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो टोटल डी, डी में से डी निकाल दो, तो स्पेसिंग डी अपॉन डी होता है, आपको मालूम है ना। तो इफेक्टिव आएगा ये, जहाँ पर इफेक्टिव है, इफेक्टिव जितना भी इफेक्टिव है, तो ये इफेक्टिव कौन सा है, ये तो है नहीं इफेक्टिव, केवल ये है। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी अपॉन डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी में से टी निकाल दो, डी माइनस। तो ये आप कह सकते हो कि जो बी आ गया आपका कितना आ गया, बी कितना आ गया, तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा आपका वो इतना बचेगा बी अपॉन डी माइनस टी। तो ये कहाँ पर लगा हुआ है, फ्री स्पेस में, तो इसको ई नॉट भी लिख सकते हैं। कितनी स्पेस में लगा हुआ है, फ्री स्पेस में लगा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट भी लिख सकते हो। इसको आप क्या नाम दे सकते हो, ई नॉट भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ से आपको मिल गया वी इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नॉट डी टाइम्स डी, ई नॉट टाइम्स डी माइनस टी, ई नॉट टाइम्स डी माइनस टी, डी आपको मिल गया। ओके, तो इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा, है ना, इसका हम क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं, कैपेसिटर प्लेट हैविंग कंडक्टर स्लेट इन बिटवीन। तो इन बिटवीन में कैपेसिटर प्लेट के बिटवीन में क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। तो हम क्या डिटरमाइन करना है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द कैपेसिटेंस, अगर हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन D। ये आप सभी जानते हैं, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो Q की वैल्यू पुट कर दो, Q तो Q ही रहेगा, चार्ज तो कैपेसिटर की प्लेट पर Q ही है, और E नॉट D माइनस टी, डी माइनस ई नॉट डी माइनस टी। ओके, तो ये आ जाएगा आपका डी माइनस टी। तो आप कह सकते हो यहाँ से E इज इक्वल टू, अब ई नॉट कितना होता है, ई नॉट मैं पहले ही बता चुका था, तो ई नॉट यहाँ पे लिख लेते हैं। ई नॉट हम जानते हैं कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस में लगता है। सिग्मा आपकी वैल्यू कितनी है, ये वाली सिग्मा की वैल्यू है, तो ये भी आप पुट कर दो यहाँ पर। सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन। तो ये वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q अपॉन, यहाँ आपको दिखेगा नहीं तो वही लिखते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को लेके चलते हैं, इस वाली चीज़ को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस वाली चीज़ को, तो ये हो जाएगा हमारा C इक्वल टू Q अपॉन E नॉट। ई नॉट इज हाउ मच, दिस इज, यहाँ पर आप देख रहे हो ई नॉट लिखा हुआ है, तो ई नॉट की वैल्यू ये है, तो ई नॉट की वैल्यू आप रखोगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा हमारा कितना, D माइनस टी, और Q से Q कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आपको दिखेगा नहीं फिर से, तो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं। तो दिस इज जस्ट हाउ मच, Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। डी को अगर कॉमन ले लेते हो आप तो क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट, डी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस टी अपॉन डी। ओके, तो अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सी नॉट, दिस पोर्शन इज नथिंग बट दिस पोर्शन इज सी नॉट।
तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D. ओके, so this is the capacitance of capacitor having a, T wide slab, having T wide slab. तो ये कैपेसिटर हो गया जिसका क्या है, T wide slab. ओके, अगर यहाँ पर केसेस अराइजेस होते हैं, द if the conducting slab wholly fill in between the two plates. Okay, तो क्या तो एक आपको कैपेसिटर ऐसा मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से एक ऐसी चीज निकल के आएगी, आप कह सकते हो इफ उतने ही थिकनेस की कंडक्टिंग स्लैब रख दें T इज इक्वल टू D, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा. इनफाइनाइट कैपेसिटेंस की क्या बन जाएगी, स्लैब वो बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. एक बार अगर उसको चार्ज कर देंगे तो फिर वो कभी डिस्चार्ज होगा ही नहीं, हमेशा ही आपको चार्ज डिलीवर करता रहेगा. तो ऐसा इम्पॉसिबल है. तो अगर हम इस तरह का कोई कंडक्टर बनाएं तो ये इम्पॉसिबल है. ओके, तो ये हमने किया. तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह का कोई कैपेसिटर हो जो हमेशा चार्ज ही रहे, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज हमें प्रोवाइड कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर अब हम चलेंगे नेक्स्ट से, ये भी हमने कर लिया. नेक्स्ट यस, ये पैरेलल प्लेट वाले 3 केसेस हमने किए. एक बार हमने रखा कैपेसिटर की प्लेट के बिटवीन में एयर, देन कैपेसिटेंस चेक किया. एक बार हमने रखा कैपेसिटर की प्लेट के बिटवीन में डाइलेक्ट्रिक, देन कैपेसिटेंस चेक किया, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया डाइलेक्ट्रिक पुट करने पर. और एक बार फिर हमने किया कि कम थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक पुट किया, और एक बार हमने कंडक्टिंग मटेरियल की स्लैब पुट की, तब क्या इफेक्ट हुआ. तो नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे. जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है स्फेरिकल कैपेसिटर. शायद आपको दिख रहा होगा, स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे. स्फेरिकल कैपेसिटर भी बना सकते हैं हम. कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर भी बना सकते हैं. तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज. पैरेलल कैपेसिटर बना रहे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक 2 प्लेट ली थी. अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं, तो दो स्फेरिकल वो ले लेंगे हम, स्फेरिकल स्लैब्स ले लेंगे, स्फेरिकल सेल्स ले लेंगे. तो स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 concentric स्फेरिकल सेल्स, है ना. स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ spherical capacitor consists of two consists of two two consists of two consists of two concentric spherical cells. Concentric spherical cell. अगर हम 2 स्फेरिकल सेल ले लें तो वो हमारा क्या होगा, पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाएगा. ओके, अब उन सेल्स के बिटवीन में हम कुछ भी रख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख सकते हैं, तो उससे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा. सेम थिंग आ गई आपकी. तो 2 स्फेरिकल सेल्स हम ले लेते हैं, कोसेंट्रिक सेल. ये वाली एक सेल ले ली, this has the radius A, center radius A, center O. Concentric means एक और लेंगे, और इसकी रेडियस कितनी है D, इसकी रेडियस कितनी है D. और इस तरह से हमने 2 सेल्स ले लिए. ओके, तो अब क्या करेंगे,
अब हमने क्या करना है, इसको इसके आउटसाइड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कंडक्टर बनाना है। कंडक्टर हमेशा कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो आउटसाइड से हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इसका पोटेंशियल कैसा रहेगा, इक्विपोटेंशियल रहेगा। तो इसका मतलब है you have two concentric cells, one has radius a, another has radius b, और यहाँ पर ये कंडीशन रहेगी b is greater than a, और इसको आउटसाइड से हमने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ कर दिया, जिससे इसका नेचर चेंज ना हो, तो कैसा रहे, ये आइसोलेटेड रहे। अगर आप इसको अर्थ नहीं करोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज लाओगे तो इसके चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके आउटसाइड पे सरफेस पे चार्ज अदर इंड्यूस हो जाएगा, तो इफेक्ट पड़ सकता है आपका। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया। ओके, नाउ द कैपेसिटेंस के इस रीजन में हम कोई भी, अभी तो यहाँ पर एयर है, तो आप यहाँ पर एयर, वही कंडीशंस आ गई, आप कोई मटेरियल पुट कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी पुट कर सकते हो, है ना। तो कुछ भी आप इसमें रीजन में पुट कर सकते हो, जो भी आपने इसमें रखना है तो वो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इसका कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है। सपोज कर लो यहाँ पर मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे रख दिया, मटेरियल यहाँ पे पुट कर दिया, फिल कर दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, आप जानते हो C इजिकल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस C इजिकल टू Q अपॉन P। ठीक है, अब आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो चार्ज ऑन दिस सेल इज Q और चार्ज ऑन दिस सेल इज माइनस Q। इसके ऊपर माइनस Q चार्ज है, एक के ऊपर माइनस है, एक के ऊपर प्लस है, तो एक को आप माइनस लोगे या आउटसाइड को माइनस ले लो, तो प्लस अंदर साइड की वैल्यू ले लो, इसको माइनस ले लो। तो एक के ऊपर माइनस है और एक के ऊपर आपका क्या है, प्लस है। तो ये आपने चार्जेस कंसीडर कर लिए। तो सेल हमने दो सेल ले लिए, एक ये सेल कोसेंट्रिक सेल, और इनके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर दिया। तो C इजिकल टू Q अपॉन B, एक चार्ज आएगा कोई, यहाँ पे मॉड्यूलस होता है, तो कोई भी एक चार्ज आएगा Q अपॉन B। इस तरह से आप नोट कर सकते हो। तो अब सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आपको Q तो मालूम है, V निकालना, पोटेंशियल डिटरमाइन करना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इजिकल टू कितना होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। तो E इजिकल टू क्या होता है, माइनस dV ओवर dr, ये आप सभी जानते हो, है ना। अगर आप ऐसे बात करें तो इस तरह से होगा। अगर आप इसका क्या ले लें, इसका हम अगर वो ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इफ आई टेक द मॉडुलस में बात करूँ इसकी, तो मॉडुलस E इजिकल टू व्हाट, E इजिकल टू dV ओवर dr, और ये होगा मैग्नीट्यूड, dV ओवर dr, ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको मिल गया dV इजिकल टू E dr, dV की वैल्यू कितनी मिल गई, E dr। अगर आपने V निकालना है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कोसेंट्रिक सेल, स्फेरिकल सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो आप कैसे लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या है, V लिख सकते हो, इंटीग्रल लगा सकते हैं यहाँ पर आप, इंटीग्रल A टू B। तो ये आपको विजिबल नहीं है, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, इफ आई राइट हियर, ओके, तो हियर मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज द अर्थ। तो अगर आप इसको डी लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, V इजिकल टू कितना होगा, V A टू B, यहाँ से लेके और यहाँ तक
इस रीजन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है। अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस रीजन में पोटेंशियल कितना होगा वो डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे, डी बी इज इक्वल टू ई टाइम्स डी आर। तो इसको लिख सकते हैं ए टू बी ई इंटू डी आर, ऐसे आप लिख सकते हैं ई इंटू डी आर, ए टू बी इंटू डी आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई इन दिस रीजन, इस रीजन में ई की वैल्यू क्या होगी। तो इस रीजन में ई की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, दिस इज द ये वाली डाल दो, हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। व्हाट्स फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल आई नीड ई कितना होगा, तो ई की वैल्यू कितनी होगी इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब ई की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे डिटरमाइन करना। तो ई की वैल्यू कितनी होगी ये डिटरमाइन करने के लिए मैंने क्या किया, इस रीजन में ई कितना होगा, ए टू बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इस रीजन में सपोज कर लो यहाँ पर मुझे ई निकालना इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा, एक कोसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, कोसेंट्रिक स्फीयर इस पर ड्रॉ कर दिया, और जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस मान लिया, दिस इज प्लस क्यू, और दिस इज मैंने मान लिया है, लेट अस सपोज दिस इज आर डिस्टेंस का, ऐसे मान लिया इसको। तो इस पर मैं लगा दिया गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, फाई की जो वैल्यू है, फ्लक्स की जो वैल्यू है फाई की, वो क्या होगा, वो क्या होगा, इस तरह से फाई की जो वैल्यू है क्या होगा, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फाई क्या होता है, फाई क्या होता है, ये होता है ई टाइम्स गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एरिया, ई टाइम्स गॉसियन सरफेस एरिया, ये होता है गॉसियन सरफेस एरिया, ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स गॉसियन सरफेस एरिया। तो इस सरफेस से जो गॉसियन सरफेस, दिस इज द डॉटेड लाइन, गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर। तो ई टाइम्स गॉसियन सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आएगा, देखो ये वाला प्लस क्यू, एक ही कोसेंट्रिक सेल आएगी, तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, दिखता नहीं है आपको, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे, पाई क्या है, ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ये स्केलर क्वांटिटी है, गॉसियन सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना है, वो क्यू ही है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, इसका एरिया कितना होगा, स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, ई टाइम्स, वो स्फीयर का एरिया कितना होता है, इस सरफेस का एरिया स्फेरिकल का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब बिकॉज किसी भी स्फीयर का एरिया इतना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इधर चला गया। तो दिस इज द ई जो मुझे चाहिए। तो ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में अगर मैं इसको पुट है तो क्या मिलेगा, जब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो इक्वेशन 2 बिकम b इज इक्वल टू ए टू बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर और ये बन जाएगा तुम्हारा डी ऑफ आर। इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू इज कांस्टेंट गोज आउट, 4 पाई is constant goes out, epsilon naught is constant goes out, integral a to b 1 by r square dr। इसका और फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके क्या वैल्यू आएगी माइनस का 1 बाई आर ए टू बी। तो और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पुट द लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अपर लिमिट इज माइनस 1 बाई ए, लोअर लिमिट इज माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए, तो प्लस 1 बाई ए राइट फर्स्ट, देन माइनस 1 बाई बी। ओके, अपर लिमिट इज माइनस 1 बाई बी, लोअर लिमिट इज माइनस 1 बाई ए, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर इसको लिख दिया, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व कर दूँ तो ये बेसिकली इतना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और b माइनस ए अपॉन ए बी, ये आ गया b माइनस ए अपॉन ए बी। तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी आ जाएगी आपकी, 1 ये है, तो c इज इक्वल टू क्यू अपॉन b, b इज दिस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v माइनस ए अपॉन ए बी, और ये आ जाएगा हमारा q से q कैंसिल हो गया, तो यू विल गेट फ्रॉम हेयर ए बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये इसका कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया। तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑलवेज। So in this expression, this is the capacity, this is the expression for spherical capacitor capacitance. For spherical capacitor capacitance, capacitor capacitance. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। तो आप इसमें इसको लिख सकते हो कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता था और इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो आप यहाँ से जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कितना कंडक्टेंस होता है। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कितना कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस था C इज इक्वल टू, अगर मैं उसको C प्राइम लिखता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ C प्राइम, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इज द रेडियस, A इज द रेडियस। ओके, तो इसका कितना कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, उसका आ जाएगा। तो इसको अगर कंपेयर कर दें इसके साथ में, तो यहाँ आप कह सकते हो कि C इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ B माइनस B अपॉन B माइनस A, है ना। इतना अगर हम वही चीज ले लेते हैं तो ये C इज इक्वल टू C प्राइम ऑफ B अपॉन B माइनस A, है ना। तो आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर है जिसमें जिसकी रेडियस A थी पहले, और उसका कैपेसिटेंस कितना था, इतना था, है ना। तो अब आप कह सकते हो इन दोनों का कंपेयर करोगे तो ए बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब आपको मालूम है तो ए बी अपॉन बी माइनस ए, अगर उसी रेडियस का आप ले लेते हो, ये रेडियस कितनी थी, तो आप कह सकते हो ए बी अपॉन बी माइनस ए इज ग्रेटर देन
ऑलवेज ए, जो आपने पहले कंसिडर की है ये चीज बड़ी रहेगी। तो आप कह सकते हो सी इज ग्रेटर देन सी प्राइम, सी इज ग्रेटर देन सी प्राइम। तो आपका कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्फेरिकल सेल का जो कैपेसिटेंस है वो स्फेरिकल कंडक्टर से ज्यादा होता है, आप बोल सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल is more as compared to the spherical conductor, इतने टाइम्स होता है। तो ये बढ़ गया, C is greater than C prime। Okay, so this is all about the today class। So tomorrow we will solve the capacitance of the cylindrical conductor, है ना, cylindrical capacitor and cylindrical cell। Okay, so now we will take class tomorrow। I am going to ending today class here।